Good morning, students. In SCC 2004, which is a paper of creative writing in BA second year, we are just going through the novel which is written by R.K. Narayan. The Dark Room is the name of the novel, in which we have already seen the character of Ramani, his wife Savitri, and there is a female named Shantabai. And we have seen the attitude of a society towards a woman who is a divorced, who wants to live a free life, and her own attitude towards life and her own attitude towards employer, the way she wants to live, and attitude of Ramani towards a working woman and towards his wife, and the way he helps her. Like initially he simply helps her because he feels like she'll give him the best output, but later on what happens that he develops intimacy with her, they come close to each other and they start spending time with each other, and Ramani starts ignoring his wife, who is a very simple housewife, and she has 3 children. She has gone through 2 abortion also, so she is bearing the burden of 5 children at present. Her 3 children are 2 girls and a boy, and boy has a very different attitude towards life, and 2 of his daughters, 2 of her daughters, she wants to educate them. Now she herself is not so educated. She was married at an early stage. She has 2 friends. One of her friend is having a very modern thought towards life. She wants to change the world according to her own. She can, she fights with her husband for equal rights, and she wants to fulfill her dreams also. And the other friend is, she is a traditional housewife. She just wants Savitri to live like the way she herself is living, like traditional way of life in India. The way traditionally girls are trained, like a husband is each and everything for her. She should live like the way husband wants her to live like, and she should be dependent on her husband, and later on she will be dependent on her son. That type of a training or mindset is given to Savitri. Now what happens that one day one of her friends reveals that Ramani had been to cinema hall with some woman. Savitri feels like this is something, a sort of misunderstanding is there, but she wants to know from her husband. She starts noticing that her husband comes home very late and he doesn't feel comfortable with his family also. So we have already finished some of the chapters. We have already finished. Now what we are doing, we are just continuing our novel now. So let us continue with the thing. In the evening, what happened that Savitri started just comparing herself, her previous self with her present self. So she feels like her eyes, they were swollen and they were red, and she was asked by her children. Normally यही होता है घरों में, जब मदर जो है वो अपसेट है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो children they start inquiring their mother that what has happened actually. And in families where father is an alcoholic, initially it doesn't create a problem, it leaves an adverse impact on our children. लेकिन when children grow up, then they start favoring their mother, particularly if daughters are there, they will be with their mother. तो उस तरह से जो बच्चे हैं वो they want to know the reason behind Savitri's swollen eyes and red eyes. She fails to explain. She says that I just touched chilies, and same hand I have applied on my eyes. So she asks her that are you being snubbed by our father, because they have seen whenever she is snubbed, so she remains upset, and that very girl also asserts that I don't like that when papa snubs you, कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जब father आपको डांटते हैं. Then she refers to the example of their teacher, that if she commits a mistake, then these children, they are also snubbed by their teacher accordingly, and punishment is given to them. Then later on we are taken to Babu. Babu is of the opinion that I need cricket fee. तो वो lady जो है, जो Savitri है, what she says that I'll pay you, I'll give you tomorrow. Then after that what happens, then she starts she is feeling insecure somewhere. तो उसको लगता है कि she is worried about the future life of Babu. तो Babu says that whenever I'll be mature, I'll start going to office and I won't be back home, I don't want to be married. अब उन्होंने जो एक एस्पेक्ट मैरिटल लाइफ का देखा है, मदर इज बीइंग इग्नोर्ड, एटीट्यूड ऑफ फादर टुवर्ड्स मदर, एटीट्यूड ऑफ फादर टुवर्ड्स his children, they are not feeling happy, they are very much upset because of that. They have been seeing that disturbances are being created at home daily because of the attitude of their father. So ultimately what happens that Babu decides to go to cricket ground, and Savitri, now she is just seeing herself, standing in front of the mirror and just seeing herself and comparing her previous self with her present self. उसको पुराने रूप के साथ आज का जो उसका फेस वैल्यू है उसको वो कंपेयर कर रही है. तो
she just saying that I don't look so bad and I am also beautiful. जो वो lady है with whom he had been to theater, हो सकता है कि वो ज़्यादा beautiful हो, लेकिन I am also beautiful. He married me, Brahmani married me because of only one thing, I was very beautiful. He wanted to be with me and he deeply loved me, but now what has happened, he fails to understand that. उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है. तो उसके बाद she starts, you know, an inferiority complex starts coming in inside her personality. उसको क्या लगता है कि Ramani doesn't like me now because I have my skin complexion has changed. I have grown, you know, I've started looking old. मैं मेरा चेहरे पे जो है वो wrinkles आ चुके हैं, मेरा चेहरा उतना fresh नहीं है. Now one thing is there, she has three children and she has gone through 2 abortions also. तो 5 बच्चों के होने का वो बर्डन वो फीमेल उठा रही है. शी इज़, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ एंटायर हाउस होल्ड ऑफ रमानी एंड हिज फैमिली. तो वो कहीं ना कहीं तो उसको अपनी सेल्फ को इग्नोर करना पड़ा है. कहीं ना कहीं उसको वो जो अपने ऊपर जो वक्त लगा सकती थी वो उसको नहीं मिला है. और उसका जो ब्रॉटअप है वो एक ट्रेडिशनल इंडियन ब्रॉटअप है, वेयर इट इज़ सेट. जब जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मदर्स का लाइफ स्टाइल कैसा है, जैसे आपका नानी का लाइफ स्टाइल था. वॉट्स एवर शी टॉट योर मदर इज़ लिविंग लाइक दैट. योर मदर फील्स कि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, मेरा हस्बैंड भूखा ना रहे, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो. इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑल दिस मदर फॉरगेट्स हर ओन आइडेंटिटी. सेम इज़ द केस विद सावित्री. अब उसको क्यों अपनी पहचान जो है वो याद आ रही है, व्हाट शी इज़ एक्चुअली, उसको ये क्यों फील हो रहा है, बिकॉज शी इज़ फीलिंग इग्नोर्ड बाय हर हस्बैंड. उसको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे इग्नोर करके कहीं और जा रहा है. अदरवाइज शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर फैमिली. वो जैसे भी ज़िंदगी जी रही थी, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद हर फैमिली. लेकिन व्हाट इज़ शी वांटिंग नाउ, शी वांट्स टू बी वेरी particular about her husband and herself. Now she is, you know, she starts looking towards herself. There she finds 2 traces or 2 white hair and she feels like कि चलो कोई बात नहीं है. Then she compares herself with शांताबाई. शांताबाई जो है she is a woman who lives a free life. देखो डिफरेंस कहाँ पे है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने टेंशन्स केयर्स एंड वरीज को वो कैरी नहीं कर रही है, उसने कुछ भी नहीं करना है. शी इज़ हर होल डे इज़ मेंट फॉर हर सेल्फ ओनली. लेकिन जहाँ तक सावित्री का सवाल है, सावित्री को फैमिली को लुक आफ्टर करना है, उसको जो सर्वेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर करना है, उनसे काम करवाना है, घर का काम मैनेज करना है, घर के बाहर का मैनेज करना है, अब ऑल उसको रमानी का भी सब कुछ मैनेज करना है. तो शी रिमेन्स ओवर बर्डन थ्रू आउट द डे. वहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो क्लियर हो जाता है कि सावित्री डजंट गेट टाइम फॉर हर सेल्फ एंड शांताबाई हैज़ ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर हर सेल्फ ओनली. सो शी ड्रेस अप हर सेल्फ. वो अपने आप को बड़े अच्छे से तैयार करती है. शी फील्स लाइक एट नाइट व्हेन हर हस्बैंड वुड कम, ही विल फाइंड हर वेरी फ्रेश एंड यंग. सो चिल्ड्रन what did they do? She dressed up herself so well. Children they took dinner. और उसने साड़ी को जो है वो एक हैवी सी साड़ी नहीं डाली. She was, you know, she was looking like, you know, a female who had been from wedding soon. जैसे वो शादी से कहीं से वापस आई है. तो she had applied fragrances also. Children were feeling attracted towards her. But after that children they went out for studies and Savitri जो है she started waiting for her husband. She kept on looking towards at her अगेन एंड अगेन. शी वेंट टुवर्ड्स द मिरर एंड लुक्ड हरसेल्फ इन द मिरर. दोबारा से अपने आप को देखती है कि कहीं उसके बाल जो हैं वो उलझ तो नहीं गए, कहीं कपड़ों में रिंकल्स तो नहीं पड़ गए, या कहीं उसका मेकअप तो नहीं ख़राब हो गया. शी कीप्स ऑन वेटिंग फॉर हस्बैंड थ्रू आउट द नाइट. पूरी रात जो है वो उसका वेट करती रहती है. एंड शी कीप्स ऑन थिंकिंग. उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच इज़ गोइंग इनसाइड विद रमानी लव्स मी और रमानी डजंट लव मी. जब वो एक कंसेप्ट देखती है कि ही इज़ विद शांताबाई, ही लव्स हर बिकॉज शी इज़ यंग, शी इज़, यू नो, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी नोज हाउ टू ड्रेस अप हर सेल्फ, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. वो अपने आप को कहीं इन्फीरियर ग्राउंड पे पाती है. जब वो रमानी का एटीट्यूड अपने लिए देखती है, तो जब वो एक एज अ वाइफ वो सोचती है, तो शी फील्स लाइक ही लव्स मी. और उसको जो है उसको डिस्ट्रैक्ट किया गया है एक फीमेल के द्वारा. वेन एवर दैट वेरी फीमेल वोंट बी देयर, ही विल बी बैक टू मी अगेन. वो दोबारा मेरे पास आ जाएगा. She kept on waiting for him. At last she lied down. और जब वो लेटती है तो she remains very particular about one thing कि उसके जो जूड़े में उसने फूल लगाए हैं वो ख़राब ना हो, उसका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो, उसका मेकअप और उसके ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो. Then suddenly she sees that in her dream she finds that he is back and then she finds that he is back and he was just swearing that I'll be with you forever. Then suddenly she finds that people are saying that Ramani lives with some other woman. वो अचानक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है सोई. It gets morning, सुबह होगी. It was Sunday, children were not going to school. Then but suddenly Savitri was not very happy. She was very sad and
Suddenly she started thinking about Ramani. वो एकदम उसका thought जो है रमानी की तरफ चला जाता है. At 1 o'clock Kamal asks that Ma, what has happened to father? She says I don't know, but he has been out for some work. बच्चों को देखो वो कुछ बताना नहीं चाहती है. She is alone sufferer, वो अकेली sufferer है. And she says that whenever man folk has work, they forget each and everything. Then Babu says that whenever I'll be an official, I'll be in job, then I'll also forget each and everything about home and I'll prefer to be in the office. देन मदर इज़ वरीड. देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन थॉट है उसमें क्या कहा जाता है कि डॉटर जो है पहले वो फादर पे डिपेंडेंट है, फिर हस्बैंड पे, उसके बाद जो है वो बेटे पे. तो उसको लगता है कि हस्बैंड वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर्स. नाउ शी वांट्स टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन बाबू. बाबू को पूछती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या. तो बाबू सेज दैट आई विल ऑल्सो बी कन्फाइंड टू माई ऑफिस ओनली एंड आई वोंट बी बैक. तो मदर को लगता है कि ही विल ऑल्सो इग्नोर हर, कि वो भी अपनी माँ को जो है वो इग्नोर करेगा. लेकिन बाबू सेज दैट आई विल बी विद यू फॉर एवर, आई विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ यू, आई लव यू. एट 9 o'clock रमानी एंटर्ड. रमानी घर के अंदर आया एंड ही वेंट टू हिज रूम. सो चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट एंड एवरीथिंग वाज कूल एंड काम, बिल्कुल शांत था. व्हाइल ही वाज टेकिंग फूड, जो सावित्री है शी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसाइड हर. उसके अंदर इतने ज़्यादा सवाल भर चुके हैं क्योंकि उसको बोलने का मौका नहीं मिलता है, उसको कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिल रहा है. लेकिन अब जो बोलते हैं ना कि वो हद हो चुकी है. शी वॉन्ट्स टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड से कुछ सवाल पूछना चाहती है. व्हेन फूड वॉज बीइंग सर्व्ड बाय द कुक, शी Ramani suddenly saw that his wife was standing there. वो उसके सामने खड़ी थी. So she asked him whether you took your food, dinner is over. He said yes, I have taken. Then you want me to sit here and wait for you forever. अब जो सावित्री के अंदर गुस्सा है, जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, that is coming out in the form of words. क्योंकि अदरवाइज वो क्या करती थी, वो अंधेरे रूम में, डार्क रूम में जाके वो अपने आप को जो है वेंटिलेट करती रहती थी. लेकिन आज उसको लग रहा है कि देयर समवन एल्स इज देयर इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड, और उसके लिए वो टॉलरेट करना जो है वो इट इज़ वेरी टफ. द कुक हैड बीन होम, ही हैड बीन बैक home. She says that you need to stop all this. I won't be with you. If you'll continue each and everything, then I am going to leave you. He had been to bed and was reading a book. अब देखो उसके लिए वाइफ के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है. वो क्या, वो अपने बेड में लेट के वो एक बुक पढ़ रहा है. And what does he do? He says that don't speak too much and go to your bed, but she doesn't want to go. She wants to talk to him today. She wants to ventilate herself. She wants to express herself. He says that don't speak so loudly, our neighbors would wake up. She's saying that if you are worried so much about our kids, then why don't you come home timely. Then he woke up. Then he realized that there is some energy which is goddess Kali का रूप, we can say in simple ways, कि अगर वो दुर्गा के रूप में अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है, लक्ष्मी या अन्नपूर्णा के रूप में वो फैमिली को खाना खिला रही है, तो आज उसको वो काली का रूप भी दिख रहा है कि शी इज़ वेरी अनॉयड एंड शी इज़ हर्ट ऑल्सो. ही ट्राइज टू टेक होल्ड ऑफ हर्स. उसको वो पेसिफाई करने की, शांत करने की कोशिश करता है. बट सावित्री, वो डज शी सेज दैट डोंट टच मी, आई डोंट वांट टू बी टच्ड बाय यू. ही ट्राइज टू बी वेरी सॉफ्ट विद हर, कि व्हाई आर यू सेइंग लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस. बट सावित्री डजंट वांट टू बी ट्रैप्ड अगेन. वो दोबारा उस चक्कर में फंसना नहीं चाहती है. सो ही ट्राइज टू टेक होल्ड ऑफ हर हैंड. शी सेज दैट आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, सो द वे यू हैव बीन लिविंग विद अनदर वुमन एंड इग्नोरिंग मी, इट्स नॉट राइट. आई नीड माई राइट्स नाउ. कहती अब तो वो मेरे राइट्स वाली बात है. एंड what you people do, whenever you need a female, you come to her, either she is a wife or whatsoever she is. When you don't need, you don't bother about that very female. Rest of the time you consider female as a slave. ठीक ही कहा गया है, इसमें गलत तो कुछ भी उसने नहीं कहा. whatsoever she felt she said correct. and at that time he tried to laugh, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी. he said that just keep quiet, you are a human being, you understand each and everything, I want to talk to you, but right now I don't want to talk to you, go and sleep, I am also feeling sleepy. So she was, she felt melted for a moment, but suddenly she was happy that he tried to talk to her very softly. She started crying and she sat on one corner of his bed. Then suddenly he said that just keep quiet, just keep yourself calm. And he felt as if everything seemed changes. उसको लगा कि सब कुछ जो है वो बदल रहा है. उसने ये सोचा कि all her worries and cares they had come to an end. उसको लगा कि छोटी सी मिस्टेक थी रमानी की, which she made it was a very small mistake, but she turned it into a hill. उसने जो है वो एक बहुत बड़ा exaggerate करके चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया था. Then suddenly
asked him that whether you promise me that you won't go near that very woman with whom you watched a movie. This again irritated Ramani को फिर गुस्सा आया and he was out of control. He said that I don't like that you just order me, you can't order me, or my wife you can't order me. At that time she realized that she was wrong. वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता था. She said that she referred to शांताबाई as a prostitute, और उसने ये कहा कि if you won't leave her then I'll leave you. You can't keep both of us together. हम दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे and I am going to move out of your house. Then suddenly the door was banged. जोर से उसने दरवाज़ा खोला और घर छोड़ने की धमकी दी and decided that I won't stay with my husband and my children. She is a bit worried about her children. Then suddenly she had no money and she took hold of then she didn't take anything from them and what did he find? उसने क्या देखा कि वो तीनों बच्चों को जगाने की कोशिश कर रही थी. He didn't want that she should take her children with their children with her. तो उन्होंने they were also confused. Children woke up and they were very confused. So Ramani asked her, why did you wake them up? She said that they are going with me. Then he stopped her from doing so. और बच्चों को क्या बोला? Just keep quiet and sleep. All of them they slept and they closed their eyes. Suddenly Ramani said to Savitri that don't try to test my patience. And what is this madness? I am saying last time go and sleep. Then she shouted. अब उसके अंदर का जो गुबार है, जो गुस्सा है, that is too much. She shouted that don't try to take hold of me and I won't. You are a bad fellow, and even if you'll try to touch me, I won't be touched by you. And she said that if you want to hurt me then you can hit me, I don't feel scared of all these things. And he said that better you leave, कि तुम यहाँ से चली जाओ. अब देखो what is the condition of a woman. Her parents are not there with her. Her brother is living a different life with his wife, fine, and she is living with her husband. Now husband, she is not a working woman. वो working woman भी नहीं है. अब उसका husband जो उठा के उसको घर से बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा है, तो उसने ये कभी नहीं सोचा क्या कि because of that very lady he is having a family. उस लेडी की वजह से उसकी फैमिली, उस लेडी की वजह से उसका घर है. बट ही इज़ नो इंटॉक्सिकेटेड बिकॉज ऑफ शांताबाई के प्यार में. उतना पागल हो चुका है कि उसको उस लेडी के ना सेक्रीफाइसेस दिख रहे हैं, ना उसका प्यार दिख रहा है, और ना उसकी जो ममता है बच्चों के लिए, ना उसको वो दिखाई दे रही है. ही सेड दैट टेक होल्ड ऑफ योर, पिक अप योर आइटम्स एंड जस्ट लीव दिस प्लेस. शी सेड दैट देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि मेरा तो कुछ भी नहीं. इट इज़ वन ऑफ द टचिंग पैसेजेस इफ़ यू एवर गो थ्रू द नॉवल, कि इस यहाँ आके वो लेडी क्या रियलाइज़ कर रही है कि मेरे फादर ने जो मुझे दिया था वो मेरे पास नहीं है. दैट डजंट बिलोंग टू मी, दैट वाज अ गिफ्ट गिवन बाय माय फैमिली टू यू पीपल. व्हाटसोएवर यू अर्न डजंट बिलोंग टू मी, वो मेरा नहीं है. तो कहते मैं तो फुली एम्प्टी हैंडेड हूँ. फर्स्टली आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय फादर, आई वाज डिपेंडेंट ऑन यू. नो इट इज़ सेड दैट लेटर ऑन आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन माय सन, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग. तो वो अपना सारा ज्वेलरी, सारा सामान सब कुछ खोल के वो रमानी के पास जो है छोड़ के वो चली जाती है. शी सेड दैट व्हाटसोएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट एंड अ फीमेल डजंट हैव एनीथिंग ऑफ हर ओन. उसका अपना तो वजूद ही नहीं होता. इन जनरल भी आपने सुना होगा ना, कहा जाता है कि व्हेन डॉटर इज़ देयर, तुम पर आया धन हो. व्हेन शी इज़ मैरिड, तो क्या डायलॉग लगता है उसके साथ कि दूसरे के घर से आई हुई बेटी है, दूसरों की बेटी है, तो उसका अपना वजूद तो कहीं दिखता ही नहीं है. सेम थिंग इज़ बीइंग असर्टेड. जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ये चीज़ें आज भी हैं, आज भी इनका वजूद है. इसीलिए जो मेन फोकस है पेरेंट्स का, जो जिन पेरेंट्स को लगता है, जिन मदर्स ने अपने आप दुख सहे हैं, व्हाट डू दे फील दैट द चिल्ड्रन, देयर डॉटर्स पर्टिकुलरली, दे शुड बी एजुकेटेड एंड दे शुड बी एबल टू अर्न समथिंग ऑफ देयर own. So she started crying, and she was looking at her kids. They were not looking at them, at Savitri, and he said that they'll live very happy when you are not there. So she said that she returned him each and everything and decided to leave the door. She left the door, she moved out, and she was looking towards the light of her husband's room which was still on. बच्चों के रूम की लाइट भी जो थी वो बच्चे जो है वो अंधेरे में थे. तो शी वॉज वरीड. मदर ऑलवेज रिमेन्स वरीड. उसको लग रहा था कि मेरे बच्चे आज अकेले सोएंगे बिकॉज रमानी वोंट गो एंड टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली. इन नेक्स्ट चैप्टर देन व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर एन आवर शी केप्ट ऑन ट्रैवलिंग. अब घर में बच्चे सोए हुए, शी केप्ट ऑन मूविंग एंड आफ्टर एन आवर शी रीच नियर द रिवर. अभी वो
नदी के पास पहुंची थी, हर ब्रेन इट वाज टोटली लॉस्ट, वो लेडी पूरी तरह से लॉस्ट थी। शी रियलाइज कि किसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अल्टीमेटली शी वेंट टू द लास्ट ईयर। आपने कभी देखा होगा जो नहाने वाली प्लेस होता है ना नदी के किनारे, या वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं जहाँ पे बैठ के कपड़े धोए जाते हैं, लोग नहाते हैं। तो वहाँ पे शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर विद मी दैट इन माई लाइफ आई फील स्केर्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। वो सेल्फ एनालिसिस करती है दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम बॉर्न टिल द मोमेंट आई विल बी ऑन फ्यूनरल पायर, की मेरी जब चिता जलेगी। और हर जो फीमेल है उसकी लाइफ ऐसे ही चलती है कि राइट फ्रॉम द मोमेंट शी इज़ बॉर्न शी रिमेन्स अ बर्डन टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती है। एंड शी इज़ नॉट ट्रेन्ड टू annoy her husband, and she is not trained to annoy her husband, one thing, and on the other thing she doesn't want to lose all the facilities which are given by husband to her. Right from the moment, right from the morning till night she keeps on working very very hard, and she reminds of the night she had when she couldn't sleep at night. उसको वो सारी चीज़ें याद आती हैं. How did she nurture her children and how did she bear the burden of her children? उसने किस तरह से बच्चों को पाला है, each and everything. Then she suddenly realized that उसकी जो एजुकेशन थी, जो उसकी संस्कार उसको दिए गए थे, वो डरने वाले दिए गए थे. कभी पड़ोसियों से डर के जीना है, कभी पति से डर के जीना है, कभी बच्चों से डर के जीना है, कभी वो असर्टिव नहीं हो पाई. नाउ देन शी सडनली थिंक्स ऑफ डेथ से पहले नॉर्मली ये सारे थॉट्स आते हैं. वो सडनली सोचती है कि मैं डेली पूजा करती हूँ, फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ गई हैं. देन शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ हर ब्रदर हु मैरिड अ गर्ल एंड गर्ल लिव द वे शी वांटेड टू लिव. उसके पेरेंट्स भी नहीं है, शी कांट गो एनीवेयर. उसकी एक सिस्टर जो है वो रंगून में रहती है. शी वांटेड टू मीट हर पेरेंट्स, लेकिन फिर उसको लगता है कि नन इज़ गोइंग टू बी विद मी. उसके बाद जो है शी इज़ फीलिंग कि मेरा हस्बैंड मेरा नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है. शी वांटेड टू गो टू मीट हर सिस्टर एंड शी वांटेड टू गो टू रंगून, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. तो वो जो है वो अल्टीमेटली वॉट शी हर थाट्स दे टर्न टुवर्ड्स रमानी. शी थिंक्स ऑफ रमानी दैट ही इज़ सच ए गुड फेलो, लेकिन ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वेरी प्रोस्टिट्यूट, और वी कैन से दैट वेरी लेडी हु हर नेम इज़ शांताबाई, जिसका नाम है. उसके बाद शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट दैट हाउ डिड शी सफ़र एट नाइट्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर एलिंग, हर हस्बैंड वॉज एलिंग. हाउ डिड शी वेट फॉर हिम. शी कुडंट स्लीप एट नाइट्स बिकॉज वो रात को उसका वेट कर रही होती थी. नाउ इट इज़ 3 o'clock, 3 बज चुके हैं. घर से निकले उसको काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन वो पानी के पास जो है वहाँ पे बैठी हुई है. शी नोज दैट आफ्टर एन आवर इट वुड बी 4, 4 बज जाएंगे, 5, 6 फिर लोग आएंगे. देन दे विल ड्रैग हर टुवर्ड्स हर हाउस. उसको घर वापस तो जाना ही नहीं है. देन शी सेज दैट व्हाट कैन आई डू. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड. सो व्हाट शुड आई डू. शी सेज दैट नो शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ कि मैं पढ़ नहीं पाई, आई एम नॉट एबल टू अर्न समथिंग ऑफ माई ओन. हर चीज़ के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे. सो नाउ शी वांट्स दैट आई विल एजुकेट माई डॉटर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. उन बच्चों को मैं अच्छा एजुकेट करके कम से कम उनको मैं ग्रेजुएशन तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी. ना अगेन द थॉट्स टर्न टुवर्ड्स शांताबाई. शी डजंट कंसिडर हर सेल्फ शांताबाई एज अ गुड वुमन. उसको वो बहुत ही घटिया औरत लगती है. सो she stands up. There was last step which was immersed in water, and there was algae was there. She slipped, and she simply prayed to God to take care of her family and her husband. And she said that I am going to be punished by Yamraj or God of death because I had a debate with my husband. मैंने अपने हस्बैंड की जो बात को काटने की कोशिश की, उनका कहना नहीं माना. बट इट वॉज लाइक फिर वो एनालाइज करती है कि इट वॉज बियॉन्ड हर कंट्रोल. वो उसको कुछ भी नहीं कर सकती थी. देन शी सेड दैट व्हाई शुड आई डाई. वो अब पानी की तरफ चली गई है, काई में उसका पाँव स्लिप हो रहा है, लेकिन वो बोलती है कि मैं आई डोंट वांट टू डाई, आई शुड बी बैक होम, आई विल बी बैक होम, आई वोंट गो बैक होम. इस तरह कंफ्यूज करते करते ऐसे लगा कि समथिंग पुल्ड हर डाउन. काई थी एक्चुअली नीचे और वो जोर से गिरी और पानी में वो गिर गई. नाउ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो गुड डे.